हीरोज के ऊपर, मतलब आप जितनी भी बायोपिक देखेंगे, तो मैं सोचा कुछ अलग करना चाहिए, इसलिए विलन पे बायोपिक कोई नहीं बनाता, विलन पे बनाते हैं। अच्छा, फिल्म लेने के पहले सर 2 साल का वनवास, नहीं तो वाकई वनवास था या क्या कर रहे थे आप? 2 साल कहाँ थे? झूठ बोलूं या सच? आज तो सच ही बोल दो, हमेशा तो क्या बोलते हो, जो ठीक है। Well, to speak the truth, I thought I was getting repetitive in doing a certain kind of cinema. I just wanted to take some time off and come and do a very proper film. Point it. नहीं, पर प्रॉपर फिल्म मतलब 2 साल तक बिल्कुल ही कहीं पे खबर नहीं, कोई खोज नहीं, लोग तो एफआईआर दर्ज करवा रहे थे आपके नाम से। हाँ सीरियसली, देखो ज्योता बैठी हुई है, हाँ वो हमारी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं वो। ज्योता, एफआईआर दर्ज नहीं करवाया ना? अच्छा, नहीं करवाया अभी तक, बट कहाँ एकदम गायब हो जाए, मतलब क्या वाकई आप थोड़ा ध्यान में थे या कैसी फिल्म बनाई जाए, क्या सोचे? मैं एक जंगल के डीप अंदर वीरप्पन के जो बचे हुए गैंग मेंबर्स के साथ छुप गया। ओह, छुप गए? आपको क्या लगता है मैं कहाँ से इस सब्जेक्ट मैटर को ढूंढ के ले गया? या यू राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही बात। क्या बात है, बच्चन एक बार जोरदार तालियां बजा, वेरी गुड। जी, अमित बच्चन है, हमारे दोस्त हैं। तो अच्छा, ये वीरप्पन की कहानियाँ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, जब मैं पोस्टर देखा तो मैं हिल गया। और ख़ासतौर से मैंने जब जैसे उनसे पूछा कि राम गोपाल वर्मा देखा तो आपने क्या रिएक्शन था, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से एंट्री हो रही है, कमबैक हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कमबैक होता है कुछ लाइफ में? I think I just want to say something about Veerappan. इसके बाद फिर वापस। See, before showing the trailer, I just want to say a few words about the film. See, I think it's common knowledge that I'm kind of obsessed with the criminal mind right from my first film, which makes me do these so-called gangster or whatever films. And why I'm obsessed with the criminal mind, maybe deep within I have a criminal mind. And I never had the guts to become a criminal, so I kind of live my fantasies on screen. But jokes apart, I think it is something very larger than life. Characters interest and intrigue me, and Veerappan probably is the most intriguing character ever I've heard of or I've researched over the years. I was always very interested in the character right from the time I heard about him, maybe more than 15 years back, and over the years, even after his death, and his story is like a Mahabharata spanning over more than 25 years. And it's very difficult to know which segment of it can be captured or will be most interesting to present the spirit of Veerappan. And then about a few years back, I happened to meet a person who's involved in the operation of killing Veerappan. So it is with him that when I started talking to him, and then I met Veerappan's wife, and then some informants who were actually mediating between Veerappan and the police and various people who had kidnapped over the years. And gathered from all that, I'd made this film in Kannada called Killing Veerappan, which was like a big hit, but that completely concentrated upon just one operation, because Karnataka people know pretty much a lot about Veerappan, so there's no point in feeding the same information. And at that time, Sachin saw the film, and he said, because he being from Bombay, he said, if this is a kind of a story which everybody needs to know in the whole world, because a criminal like Veerappan technically never existed anywhere in the world. Why I'm saying the world? Because it doesn't have an organization like a terrorist organization or some kind of a state-sponsored rebel gang. He's just an ordinary criminal, yet he managed to make 3 state polices, including the government, central government support, giving the border security force, which they couldn't kill him or capture him for more than 20 years, and more than 700 crores was spent to capture him. Until the day an intelligence operation, finally they managed to put an end to the greatest villain ever who lived on the earth. So that elaborateness made on a large scale, and to
I mean, there's a biopic angle to it, but at the same time, it talks about the men and women who were involved in the intelligence operation and finally succeeded. And that's what the film is about. And I'd like you to first watch the trailer now, and after that we'll continue this. Thank you. Good afternoon, everyone. I hope you like the trailer of Veerappan. I've always tried to do something different, and this time it's Veerappan. So I hope you guys enjoyed it. पर ऐसी ही फिल्म क्यों प्रोड्यूस किया यार आपने? क्या सोचा प्रोड्यूस करने के लिए? खैर सबसे बड़ा रीज़न ये था, जैसे मैंने फिल्म देखी कन्नड़ा में और मुझे काफ़ी पसंद आई, और मुझे लगा कि वीरप्पन जब था, आई मीन एग्जिस्ट करता था, तब हमेशा सुर्खियों में रहता था, हमेशा दुनिया उसके बारे में जानने की कोशिश करती थी। एक साधारण आदमी इतना बड़ा क्रिमिनल कैसे बन पाया? तो मुझे लगा कि कहानी में इंटरेस्ट है, और उससे बड़ी बात ये थी कि सारे ही लोग फिल्म बनाते हैं हीरोज़ के ऊपर, मतलब आप जितनी भी बायोपिक देखेंगे, तो मैंने सोचा कुछ अलग करना चाहिए, इसलिए विलन पे बायोपिक कोई नहीं बनाता, विलन पे बनाते हैं। अच्छा, फिल्म लेने के पहले क्या क्या जानते थे वीरप्पन के बारे में आप? वेल, जितना सभी लोग जानते हैं कि वीरप्पन एक स्मगलर था, सैंडलवुड की चोरी करता था, हाथियों के दांत उनकी चोरी करता था, और काफ़ी लोगों को उसने मारा। बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन जब इस प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व हुआ, जब रामू जी के साथ मैं बैठा और समझा कि ये एक खाली एक सैंडलवुड स्मगलर नहीं था, या ये खाली हाथियों के दांत नहीं बेचता था, लेकिन इसकी जो जर्नी थी बचपन से लेके जब तक ये एग्जिस्ट करता था, काफ़ी कुछ था इसके बारे में। मतलब छोटी चीज़ों में इसको मज़ा नहीं आता था, इसका नाम जितना बड़ा हो उसमें उसको ज़्यादा मज़ा आता था, तो वो चीज़ ऐसी करता था। मतलब पॉपुलैरिटी भी चाहिए थी उसको पॉपुलैरिटी चाहिए थी, तो वो चीज़ इसमें सामने दिख के आएगी। कैसे उसको बड़े लोगों से जुड़ना था और कैसे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल बनना था। उसने रामू जी को ऑफर करना चाहिए था उसको, है ना, कि सर मैं एक फिल्म करना चाहता हूँ, पॉपुलैरिटी अपने आप मिल जाती है ना। थैंक यू सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून। तो वीरप्पन की बीवी, तो वीरप्पन के बारे में आप कितना जानती हैं? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, वीरप्पन के बारे में जैसा सचिन ने कहा कि हम सब एक मोटा मोटी जानते थे बचपन से ही, बट आई नेवर न्यू अबाउट मुथुलक्ष्मी, हिज वाइफ। फर्स्ट टाइम व्हेन रामू सर टोल्ड मी अबाउट हर जर्नी विथ वीरप्पन, उसकी शादी से लेकर के वीरप्पन की डेथ तक, एंड सो आई केम टू नो थ्रू दिस फिल्म, थ्रू दिस स्क्रिप्ट। देन आई रेड ऑन गूगल पे, मैंने सर्च किया, उसकी फ़ोटोज़ देखी, एंड इट्स वेरी नाइस जर्नी ऑफ मुथुलक्ष्मी, क्योंकि उसका भी एक टॉर्चर जो पुलिस से उसको हुआ था ना, ऑल दोज थिंग्स आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग अबाउट हर लाइफ। तो रामू सर ने क्या बताया था कि कौन सा कैरेक्टर है? शुरू बताया था आपको ये कैरेक्टर और ये करना है, यही रोल करना है आपको? हाँ, ऑफ कोर्स ही वाज वेरी क्लियर, एंड व्हेन आई मेट हिम इन द ऑफिस ही सेड आई वांटेड टू प्ले मुथुलक्ष्मी। ओहो, Yeah. क्या बात। So, थैंक यू, प्लीज सिट। लीजा रे, वी हैव एक बार जोरदार तानिश चाहिए लीजा के लिए, इसमें बहुत ही बढ़िया किरदार है। सो लीजा, ये बहुत अच्छा ड्रेस है आपको ये। वाह, ऐसा क्यों? फिल्म में कैरेक्टर ऐसा क्या है? हाँ, yes. वो आप टच करो अच्छे से इसको, हाँ चलने लगेगा। Okay, it's working. ओके। हाँ, लेकिन I'm also hiding something very important. क्या? देखो। अच्छा, टूटा हुआ है ना? हाँ, टूटा हुआ। ठीक, कोई बात नहीं। While I was working on the film. ओके, क्या हुआ था ऐसा? So, but I think it was worth it also. तो रामू ने ऐसा डंडा मारा है, अच्छे शॉट नहीं दे रही हो तुम, क्या हुआ था? No, it was just a simple scene where I'm not very skilled at riding a scooter, a two-wheeler. I thought I would do better, but I fell off. But only after we got the shot, so it was okay. तो what is the character क्या है आपका इसमें फिल्म में? Without giving away too much, I'm playing a real-life woman who is recruited by the police to help catch Veerappan. Please.